Saturn, कई बारी हम डबल ट्रांजिट की बात करते हैं. I'll tell you what double transit is. We say Jupiter's aspect on any house is a blessing. I've been saying this many a times, that even if Jupiter is akarak for your kundli, like my case, Jupiter is a lord of the third house and the lord of the sixth house is not a benefic planet for me. Still, I would say Jupiter जहां जहां दृष्टि डालते हैं वहां शुभता ही फैलाते हैं, प्रदान करते हैं. Blesses that house, it blesses the planet, whichever house or whichever planet it aspects through its fifth aspect, seventh aspect or ninth aspect. तो अभी this Even transit, if it is a retrograde. even if it is a retrograde, even if it is a retrograde, Okay. उसकी थोड़ी सी again थोड़ी सी कमी आ जाएगी, थोड़ा सा weird बिहेव कर सकता है. रेट्रोग्रेड प्लैनेट पता है सिंपल, हमें उनको समझने में थोड़ा सा इंसान नहीं समझ पाता. Like we don't understand राहु केतु that deeply. Okay, we can't say 100% मैंने राहु के, जिस दिन मैंने 100% राहु केतु पे मतलब थीसिस लिख डाली कि this is what it is, that day I'll be the greatest astrologer ever born. Hence, because they are retrograde, so they have so much of karmic debt, उनके सारे results infer कर पाना, it's really humanly very difficult. And hence, when any planet gets retrograde, Dr. Sandhya, be it any planet, you asked about Jupiter, तो उसका result थोड़ा सा tricky हो जाता है. But उसके एस्पेक्ट शुभ होते हैं, वो हमेशा रहेंगे. अब वो शुभता एक प्राइस के साथ देगा, मतलब द मोमेंट इट गेट्स रेट्रोग्रेड, वी से ना स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बस वो स्ट्रिंग्स अटैच हो जाती हैं एक प्लैनेट के कर्तव्य में जैसे ही वो रेट्रोग्रेड हो जाता है, कुछ तो हो जाता है. नाउ व्हेन आई वाज सेइंग currently Jupiter is in the Vrishab Rashi, okay, in the transit. If I click a new chart and I make it Tula Lagna, I just rotated, and this is the current date and time. This is not my chart. See, you find Jupiter in the 8th house, correct? Jupiter is looking at the 12th house with its fifth aspect, 1, 2, 3, 4, 5. मतलब Jupiter यहाँ से बैठ के यहाँ के केतु को देख पा रहा है. This is the Gochar. This is the current transit. Jupiter is able to aspect, so that means Jupiter is aspecting Virgo with its fifth aspect. कन्या राशि को देख रहा है पांचवी दृष्टि से वृषभ राशि में बैठ के. From Taurus it is aspecting Virgo. It is aspecting Scorpio with its seventh aspect, correct? Right. Scorpio, Vrishchik Rashi. And this Jupiter is also aspecting Makar Rashi through its ninth aspect. The 7, 8, 9, मतलब मर्करी सन को ही फिलहाल जुपिटर का एस्पेक्ट मिल रहा है. अब डबल मैंने ट्रांसिट कुछ बोला था. सैटर्न देखिए यहां बैठा है अभी कुंभ राशि में करंटली along with Venus. Okay, these two planets are sitting in कुंभ राशि right now. Saturn की तीसरी दृष्टि होती है थर्ड एस्पेक्ट. So Saturn from this कुंभ राशि is able to aspect Mesh, Aries, 1, 2, 3. Saturn is aspecting Leo, the seventh aspect. And Saturn is aspecting Scorpio with a 10th aspect. 7, 8, 9, 10. अगर आप 11 से शुरू करोगे ये 10वां घर होगा. अगर मैं ऐसे दिखा दूं ज्यादा आसान होगा. ये सैटर्न को मैंने बना दिया यहाँ. सैटर्न ये 10वें घर को देख रहा होगा ना, 10वीं दृष्टि होती है ना. हाँ जी. अब ये 10वां घर कौन सा है? स्कॉर्पियो. राइट. और मैं जब जुपिटर से घुमा रहा हूं तो साफ दिख रहा है जुपिटर भी ये स्कॉर्पियो को देख रहा है. इसी को डबल ट्रांजिट कहते हैं कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर हाउस जुपिटर और सैटर्न दोनों से एस्पेक्टेड हो जाए इन द गोचरा, दैट हाउस हैज बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट इन आवर हॉरोस्कोप्स. वो ट्रिगर हो जाता है वो. Jupiter is fourth and ninth aspect, no? Or seventh is by default. अब फोर्थ है ही नहीं, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ. And Girija, please remember it by heart. Seventh aspect is applicable for all planets. Yeah, correct. Sorry, fifth and ninth. Fifth and ninth. Yeah. तो ये सेवेंथ से स्कॉर्पियो को देख रहा है और मैंने कहा सैटर्न 10th से स्कॉर्पियो को देख रहा है. तो स्कॉर्पियो में डबल ट्रांजिट दिख रहा है. डबल ट्रांजिट कहते हैं जब सैटर्न और जुपिटर दोनों किसी राशि पे एस्पेक्ट डाल रहे हो. तो अभी गोचर में ऐसा ही होना ना. जुपिटर इज आल्सो एस्पेक्टिंग स्कॉर्पियो, सैटर्न इज आल्सो एस्पेक्टिंग स्कॉर्पियो. क्लियर? That's a thumb rule. That's a thumb rule. Jupiter and Saturn double aspect. Yeah, it's Parashu's rule. Only those two. Only those two. Now हमने कल sorry,
if a house is being aspected both by Jupiter and Saturn, it's a good Good aspect. nahi. The Makes house it becomes prominent. activated. Correct. If it's Okay. a bad house in our horoscope, then bad things get activated. If it is a good thing in our horoscope, then good things get activated. And there can be variety of things in a house, na? Bad house मतलब उधर बेकार प्लान मतलब the Bad, planets, not suitable bad house planets का are there. मतलब bad house is good. देखो मैंने वही बोला था, there is no planet good, there is no planet bad, there is no house good and there is no Oh, house bad. I'll tell you why I'm correct. saying this. 11th house activate होता है तो gains आते हैं, तनख्वाह हाँ बढ़ती है, इंक्रीमेंट बढ़ता है, नई नौकरी ज्यादा तनख्वाह की मिल जाती है, गेन्स बढ़ते हैं, नेटवर्क इंक्रीज होता है। पर जब 11th हाउस एक्टिवेट होता है तो हॉस्पिटल के बीमारी। चक्कर लगते हैं, बीमारियां आती हैं। नाउ इट इज अप टू यू ना, इफ यू डोंट केयर अबाउट द बीमारी इट्स अ ग्रेट हाउस, इफ यू केयर अबाउट द बीमारी इट्स अ बैड हाउस। इट्स आवर ओन पर्सपेक्टिव। तो अभी आपकी कुंडली में स्कॉर्पियो इज सेकंड हाउस, so यस, both Jupiter and Saturn are aspecting it, so that हाँ, means it becomes prominent, like it must be. बिकॉज प्रोमिनेंट। अब उससे क्या क्या Yeah. देखते हैं हम, उससे बैंक बैलेंस देखते हैं, ये तो सबको पता है, ये तो छोटी सी बात है एक्चुअली। उससे ज्यादा बड़ी बात पता है क्या होती है? उससे हम स्पीच देखते हैं, Speech, how you'll talk to people. राइट? एंड बैंक Mm. बैलेंस भी देखते हैं। तो फॉर द Mm. लास्ट 23 years आई अंडरस्टैंड, आई एम इन दैट कॉर्पोरेट world and I've been working since December 2001, so it's been more than 23 years, right? Mm. However, कुछ तो ट्रिगर हुआ होगा कि after doing astrology for almost 22 years, June 2002 when I started studying, and we are in June 2000, मतलब 22 years, 23 years, whatever it is, all of a sudden something triggered last year that I thought, okay, or it happened. Nah? There may be facilitators and there may be people because of whom this has all happened, but हुआ ना कि अब मैं और बोल रहा हूँ, ऑफिस में तो बोल ही रहा था 23 साल से, है ना? अब मैं और बोलने लग गया, और बोलने से पैसे भी मिल रहे हैं। ऑफिस में तनख्वाह तो खैर बोलने की ही मिलती, बिकॉज आई एम अगेन नॉट अ टेक्नोक्रेट, सो आई वाज ओनली गेटिंग पेड इन माय करियर जस्ट टू स्पीक एंड नथिंग एल्स। एंड हाँ, एट टाइम्स अप्लाई माय But, माइंड तो but है। is the Saturn making your speech delayed, like धीरे कर रहा है कुछ? नहीं, हाँ, Is अच्छा the सवाल Saturn पूछा। हाँ हाँ, बहुत ठीक है? अच्छा सवाल। अब होता क्या है, ये डबल ट्रांजिट क्यों मैजिकल है? हम्म। जुपिटर बहुत तेजी ले आता है, सैटर्न रोकता है। जब ये दोनों मिलकर किसी चीज को एस्पेक्ट करते हैं तो गाड़ी को बिल्कुल आइडल स्पीड पे चलवाते हैं। नीदर यू Okay. रेस एट 140, नीदर यू ड्रैग योर कार एट 45, यू Okay. कॉन्स्टेंटली ड्राइव इट एट अ वट एवर स्पीड द लेन सेज। अब लेन वाला हमारे यहाँ इंडिया में तो कोई फॉलो नहीं करता, वो 120 की लेन में 80 में चलाते हैं, मतलब ओवरटेकिंग लेन में। बट otherwise I'm saying, so it's the ideal speed with what you drive when both this expansion and restriction, they both Mm. bless at the same time। तो कहते हैं सही अमाउंट ऑफ, मतलब सी एनी अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कम आप चीनी ही नहीं डालोगे, एंड इफ यू वांट अ स्वीट टी तो आपको फीकी लगेगी चाय, बहुत ज्यादा डाल दोगे तो इतनी मीठी हो जाएगी, यू कांट हैव इट। बट व्हेन सैटर्न एंड जुपिटर बोथ कम इन, you get the best tea with the right sugar। तो आप सोच समझ के अच्छा बोलेंगे जो भी प्रश्न। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वाणी बड़ी अच्छी हो जाएगी।